We have a very special guest today, Niharika ji, the founder of Broomy. What is Broomies? Broomies एक टेक एनेबल प्लेटफॉर्म है। How did you get the idea? Start कैसे करा? ना ये मेरा आइडिया था Okay. ना मुझे स्टार्टअप करना था। I think आपका कितना रेवेन्यू हुआ उस टाइम पे? That time we were I think doing 1 crore and GMV was about 7 crores. Today our GMV is 150 crores. There is a phrase called you can either be a good founder or a kind founder. हाँ मतलब आप पहले co-founders बने, then आप marry हुए बाद में। मैरी हुए। Married हुए, you got married. When did you decide कि यार हाँ ठीक है? Hey guys, what's up? This is Dev Taneja and I'm the host of this podcast Unicorn in 2026 powered by Anjab.ai and we have a very special guest today, Niharika ji, the founder of Broomies. And believe me, she is a person who has dropped out of ISB, she has left her job and she has now 27 investors on her board to build a startup to disrupt an entire industry. तो अगर तुम एक स्टार्टअप फाउंडर हो, अगर तुम स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहते हो और अगर तुम सोच रहे हो कि भाई तुम्हें कभी ना कभी इन्वेस्टमेंट रेज करनी पड़ेगी थ्रू अ VC और एन एंजल और फ्रॉम any kind of fund, भाई this is going to be a really insightful podcast for you. Do not miss this and I can bet you are not going to find such a different podcast throughout the entire internet because ये एक normal से boring studio में या room के अंदर shot नहीं हुआ है. This has been shot in her own kitchen जहाँ पे वो हमारे लिए खाना बना रही थी and we were going to judge her food plus ask her a lot of questions to provide you the value. So watch it till the end and subscribe now for more. What is Broomies? What do you do and क्या क्या आपकी TG है? So Broomies एक टेक एनेबल प्लेटफॉर्म है। We have an app, we have a website and we basically provide cooks, babysitters and cleaners. Right. The idea is कि working professionals find it very difficult today to manage their homes, whether it is to take care of a baby or whether it is to cook good food. So that's मतलब ये सबकी घर की कहानी है. It's not like it's a new problem that I'm trying to solve. But I think execution has been a critical part in this space, so that's what we're really solving for. So if you're a working professional and you don't want to cook yourself, so you can hire someone from us and we would send the same person to your house every day. So it's not like Urban Clap where it would be like one time service. Okay. हर दिन सेम वर्कर आपके घर आएगी. So basically इसमें एक बहुत बड़ी मेजर प्रॉब्लम आती है कि let's say both the parents are working, तो उनकी जैसे मेरी एक मासी हैं, उनके दोनों बच्चे स्कूल जाते हैं एंड दोनों पेरेंट्स आर वर्किंग. सो उस टाइम में सिक्योरिटी इश्यूज बहुत होते हैं कि कोई एक नया पर्सन आ रहा है आपके घर में, आपसे वर्क कर रहा है, इवन आफ्टर वेरिफिकेशन इफ समथिंग हैपेंस, तो हु टेक्स गारंटी फॉर दैट? सो इनिशियली वी डू ऑल द चेक्स. सो पुलिस वेरिफिकेशन होगा, आधार चेक होगा, इन मोस्ट केसेस एक्स एम्प्लॉयर चेक होगा. बट यार आफ्टर दैट ऑल्सो इफ समथिंग हैपन्स, ऑनेस्टली वी डोंट टेक द लायबिलिटी बिकॉज it's the same as Ola, Uber or Zomato or anyone. We would assist you in every way possible. But if you say that you've incurred a very heavy loss and Broomy should be liable to pay for it, that's not possible because at the end of the day you're dealing with a human and we are connecting you to that human. We are ensuring all the checks and everything till whatever is legally possible, right? अब उस इंसान के दिमाग में घुस के तो you can't really do a check. अगर उसमें वो तो नॉर्मल भी होता है कि अगर आप बाहर से भी किसी को अगर आप हायर करते हो, exactly, तो अगर वो भी कुछ कर लेती तो you cannot do anything. You can't do much, but of course we have a team which will look into filing a police case if that's required. We have a legal team who looks at any of these cases that have happened. Having said that, बहुत ही कम cases हुए हैं where something has gone wrong. We've served अभी तक 20,000 customers, so that's a very big number. उसमें से I think the percentage of this is not even 0.1%. So that way the chances of error of something going severely wrong, that's less, but इक्का दिक्का हो जाता है. सही है. कैसे how did you get the idea? Start कैसे करा? Inspiration कहाँ से आई basically? ना ये मेरा आइडिया था. Okay. ना मुझे स्टार्टअप करना था. Honestly, I thought मैं तो corporate sector में रहूँगी. I'd be a McKinsey consultant. Okay. That was the dream. And I was going to do my MBA from ISB Hyderabad. Okay. COVID happened and मेरे को बहुत क्लियर था कि मैं ऑनलाइन MBA नहीं करूँगी, so let's defer it by a year. I'll join next year.
So that's when I just on the ISB WhatsApp group, I texted कि कोई और कुछ कर रहा है क्या for a year. I just want to try something. And I'd never met my co-founder. That's for the first time he messaged me saying कि हाँ हम लोग मैं और मेरा एक best friend कुछ कर रहे हैं. Do you want to do this? So he told me the idea and I found it to be a real problem because मेरे mom dad working है. अभी भी वो नीचे office में दोनों CAs हैं काम करते हैं. Okay. So I have been practically raised by helpers and I have seen my mom struggle a lot with finding a decent helper. क्योंकि अगर वो नहीं है घर पे तो you can't really manage work. Right. So I thought कि यार ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है, ये तो सॉल्व करना ही चाहिए. एंड आई एट दैट टाइम डिडंट थिंक कि इसमें पैसा बनेगा नहीं बनेगा क्या रहेगा, बट आई जस्ट थॉट दैट ये सॉल्व करना चाहिए. इमोशनल डिसीजन था. या बहुत ही ज़्यादा इमोशनल डिसीजन था. एंड एट दैट टाइम इट वाज एक्चुअली अ वेरी स्पॉन्टेनियस डिसीजन. आई डिडंट थिंक फार टू लॉन्ग टर्म कि क्या होगा क्या नहीं. तो वाज वेरी क्लियर कि करके देखते हैं कौन सा मुझे कुछ. आई एम नॉट लाइक लूजिंग एनीथिंग. सो एंड देन आई आस्क्ड Vaibhav and Saurav कि my co-founders, best friends from college, not from my college, their college, DTU. Okay. And I told them कि यार ये तो पहले तो मेरे घर का इशू है ये, तो तुम पहले मुझे वर्कर भेजो. अगर तुम मुझे वर्कर भेज सकते हो तो good enough, like I will join you. And that's when they sent Sunita Didi. So she is actually a Broomies worker. And अब आपको कितने साल हो गए? मुझे 5 साल 2 महीने हो गए 2020 में. She remembers 5 साल 2 महीने हो गए हैं. And she has been with us. 15 जुलाई. So तब से दीदी हमारे साथ है. तो आपने तभी आप जिस कॉलेज से ग्रेजुएट हुए थे तब आपने शुरू करा था या उसमें कुछ टाइम हो गया था? नहीं आपको वो एक्सपीरियंस आ गया था? मैं आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम हिंदू कॉलेज. उसके बाद मैंने 2 साल जॉब करी है कंसल्टिंग फर्म में. एंड उसके बाद आई लेफ्ट माई जॉब टू गो टू ISB एंड आई वाज सेट लाइक bags were packed, fees was paid, but COVID happened. So lockdown. तो ऑनलाइन हुआ आपका कॉलेज? हाँ, so I dropped out. I said I'm not going to do an online MBA. It doesn't make sense. Right. मतलब 45 lakhs दे के ऑनलाइन MBA तो मेरे को नहीं करनी थी. So I said. तो उसका रिफंड आया? I didn't pay the entire fee, but क्योंकि मैंने defer किया था तो of course I lost some amount. But at that time Broomies was already it had taken off. एंड जब नेक्स्ट डे डिसीजन लेने का टाइम आया, वैभव इज ऑल्सो अ ड्रॉप आउट ऑफ ISB बिकॉज मतलब हम दोनों ने स्टार्ट किया था. एंड आई रिमेंबर मैंने ISB के एडमिशन्स डायरेक्टर से बात करी थी उस टाइम में बिकॉज इट वॉज अ वेरी क्रिटिकल डिसीजन राइट कि तुम क्या करना चाहिए, ब्रूमीज करना चाहिए या ISB जाना चाहिए. तो मेरे को उस टाइम एडमिशन्स डायरेक्टर जो ISB का उसने बोला था कि यार MBA तो आप कभी भी कर सकते हो, स्टार्टअप आप हमेशा नहीं कर सकते, तो आई थिंक यू शुड टेक दैट शॉट. सो बहुत गाली पड़ी थी घर पे बट वी स्टार्टेड. तो आर देयर एनी रिग्रेट्स जो आपको स्टार्टिंग के टाइम पे आपने कोई डिसीजन लिया हो ब्रूमीज के अंदर जो आपको अभी फील हो रहा हो कि ये नहीं करना चाहिए था? यार आई थिंक वो तो मेरे को अभी तो आप पूछो कल का ही कोई रिग्रेट मिल जाएगा फॉर श्योर. आई थिंक दैट्स हाउ द फाउंडर जर्नी इज राइट. लाइक व्हेन आई स्टार्टेड ब्रूमीज आई वाज 23. Okay. Fairly young. Now I'm still 28. तो मतलब पता तो था नहीं टीम कैसे चलाते हैं, कुछ भी कैसे करते हैं. एनालिस्ट थी मैं अपनी जॉब में एंड देन डायरेक्टली बिकमिंग अ फाउंडर. एंड टुडे आई हैव 150 पीपल अंडर द टीम. सो इट्स अ वेरी बिग टीम. सो यू डू मिस्टेक्स एवरी डे. मतलब आपने गलत किसी को झाड़ दिया, किसी को पोलाइटली नहीं बात करना चाहिए था, थोड़ा टाइट करना चाहिए था, नहीं किया. कोई मार्केटिंग डिसीजन लेट कर दिया, कोई कैंपेन मिस कर दिया. इट हैपन्स एवरी डे ऑनेस्टली. सो ओके, फिर स्टिल एक ऐसी मेजर मिस्टेक जो कि मैं भी कर सकता हूँ, क्योंकि आई एम ऑल्सो 23. वी हैव ऑल्सो जस्ट स्टार्टेड 3 months बैक एंड तो हमारी 15 लोगों की टीम है. तो हम भी बहुत फकअप्स कर रहे हैं आजकल. तो एनीथिंग दैट आई शुड टेक केयर ऑफ या समवन वाचिंग द वीडियो कैन? आई थिंक इन द इनिशियल ईयर्स ऑफ योर बिजनेस सब कुछ डेलीगेट नहीं करना चाहिए. मतलब यू शुड आइडियली डू एवरीथिंग योरसेल्फ एटलीस्ट फॉर सम टाइम, or do it very closely with the person you've hired. Otherwise अगर तुम्हें वो expertise initially नहीं है तो तुम्हें कोई भी बुद्धू बना सकता है. और you also won't know exactly what would be the challenge जो वो person face कर सकता है. So initially I think this is one thing that we did right. कि we did everything ourselves to a very large extent for I think a year and a half or 2 years. And kept costs at a very very minimal level. पर हमने थोड़ा delegate late किया. I think that would be maybe a
मिस्टेक आई वुड से, बिकॉज जो टाइम आप बचाते हो आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम, राइट, वो बहुत क्रूशल भी होता है फॉर स्ट्रेटेजिक डिसीजंस. तो आई थिंक हाँ, उस पर्सपेक्टिव से या आई थिंक there's a plus and a negative both. सो टू फ्रेम इट इन अ सिंपल मैनर, इट्स लाइक कि आपको स्टार्टिंग में खुद से करना है फॉर अबाउट अ ईयर और सो, एंड उसके मतलब बाद डिपेंड करेगा आपकी स्टार्टअप ग्रोथ पे, बट हाँ मतलब मेरे लिए 1 साल था वो, किसी के लिए Okay. 6 महीने, 1 महीने, 2 साल भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन कितना फंड है या नहीं है और कितनी एक्सपर्टीज आपको डेवलप हो गई है. ओके. पर हाँ, स्टार्टिंग में खुद करो और बाद में डेलीगेट करो. सो आपने ड्रॉप आउट लेके विद वैभव एंड वन मोर सौरभ, पर्सन, सौरभ, या वैभव एंड सौरभ आपने स्टार्ट करा. सो आप तब तक जब आप ज्वाइन करे थे तो ऑलरेडी किक ऑफ हो चुका था ब्रूमीज, या फिर क्या स्टेज पे था? बहुत ही अर्ली स्टेज पे था, नाम भी नहीं रखा था. अच्छा. मतलब सब कुछ फिगर आउट ही कर रहे थे कैसे करना है. तो हाँ, बहुत ही अर्ली स्टेज. आई थिंक कोविड था, उन्होंने 1-2 महीने लगाए थे सोचने में क्या करना है. कुछ भी नहीं किया था तब तक हमने आज साथ ज़्यादा, बट हाँ एक बेसिक आइडिया था कि कंपनी का क्या विजन होगा, क्या डोमेन्स होंगे. थोड़े थोड़े वर्कर्स ऑनबोर्ड करने से उन्होंने स्टार्ट कर दिए थे. उनका एक्चुअली बैकग्राउंड ही NGO बैकग्राउंड है. मतलब दे हैव ऑल्सो वर्कड विद डिफरेंट कंपनीज, बट एट द सेम टाइम दे वर ऑल्सो रनिंग एन NGO, जहाँ पे वो बच्चों को, अनप्रिविलेज बच्चों को, करके कुछ नन्हे कदम या हाँ. तो वो अनप्रिविलेज बच्चों को वापस स्कूल में एडमिशन्स करा रहे थे. Okay. सो दे ऑलरेडी हैड अ लॉट ऑफ बैकग्राउंड एंड कॉन्टेक्स्ट. सो या सो कूल. तो स्टार्टिंग में सबसे बड़ी दिक्कत क्या आई थी? क्योंकि आई थिंक कस्टमर्स लाना इज़ नॉट अ मेजर चैलेंज, इन दिस केस हेल्पर्स लाना इज़ अ बिगर चैलेंज, या और उनका वेरिफिकेशन वगैरह करना. तो स्टार्टिंग में कुछ ऐसा चैलेंज आया था आपको कि ऑन ग्राउंड जाना पड़ता होगा ऑन बोर्डिंग हम के लिए? तो हम एक्चुअली पूरे कोविड घर में रुके ही नहीं है. हम लोग पूरे कोविड बस्तियों में ही थे. एक बस्ती से दूसरी से तीसरी, बिकॉज हम लोग पूरे टाइम वर्कर्स ऑन बोर्ड कर रहे थे. ओके. तो हाँ, मतलब आई थिंक यू राइट, लाइक इन दिस स्पेस डिमांड इज नॉट अ चैलेंज, सप्लाई इज, एंड नॉट जस्ट सप्लाई बट क्वालिटी सप्लाई, कि थोड़ा बहुत काम अच्छे से आता हो, कुछ डिफरेंस हो फ्रॉम अ लोकल हेल्पर, तभी तो कोई लेगा आपसे, राइट? राइट. सो वो है. तो चैलेंज तो सबसे बड़ा यही था कि कोई बाहर ही नहीं आना चाहता था उस टाइम पे अपने घरों से, बट वी वांटेड टू रियली मेक यूज़ ऑफ द सिचुएशन एंड ऑन बोर्ड पीपल. बट आपने ये मतलब स्टिल ऑन बोर्ड कैसे किया? क्योंकि अगर आप डायरेक्टली उनको बताओगे तो यहाँ पे 2 प्रॉब्लम्स आती हैं. एक तो कंसिस्टेंसी वाला प्रॉब्लम आता है कि मेट्स एक बार आती हैं, फिर वो अगले दिन से गायब हो जाती हैं, किसी का कुछ हो गया, किसी का कुछ हो गया, तो दे हैव टू गो, है ना. एक तो ये कस्टमर के साइड पे दिक्कत आ सकती है, उनका एक्सपीरियंस खराब हो सकता है. सेकेंड इज़ कि टू ऑन बोर्ड ऑल ऑफ दीज हेल्पर्स टुगेदर यू माइट बी नीडेड सम मिडल मैन जो कि उनको मैनेज करते हों, जो डायरेक्टली उनको ऑन बोर्ड करवा दें. ऐसा कुछ हुआ था कि एक पर्सन ऑन बोर्ड हुआ था? हमने तो एक्चुअली एक बस्ती टाइप ऑन बोर्ड करी थी. हम लोग कैंपेन्स करते थे, एक बस्ती जाते थे विद लॉट ऑफ फूड, लॉट ऑफ पैम्फलेट्स, और हमारे पास एक ऐप, हमने एक मेकशिफ्ट ऐप बनाई थी तब वर्कर्स की. तो हम उनका डेटा कलेक्ट करे जा रहे थे. उस टाइम पे वर्कर्स के पास ऑलरेडी जॉब नहीं थी, बिकॉज कोविड था, कोई घर पे बुला नहीं रहा था. बट हमारे पास कस्टमर बेस था जिनको वर्कर्स चाहिए थे, स्पेशली 24 आवर्स वर्कर्स चाहिए थे जो घर पे ही रहें, एक्सपोजर ना हो. एंड हम लोग मिनिमम वेजेस देते हैं. सो फॉर एग्जांपल सुंदर दीदी पहले आप 8-9 हज़ार कमा रहे थे, है ना? लॉकडाउन के टाइम पे 8-9 हज़ार ना. अभी आपकी सैलरी क्या है? 17,500. सो आप 8-9 हज़ार से 17,500 पे पहुंच गए हो, तो Okay. आपका एटीट्यूड चेंज होगा. अगर Correct, पहले आप 2-3 छुट्टियां मार लेते थे हफ्ते में, अभी आपको लगेगा कि मेरी जॉब मैटर करती है. करेक्ट, कि आई एम गेटिंग पेड वेल. हाँ, मेरे को अच्छे से पैसा मिल रहा है, मेरे को भी प्रोफेशनल रहना है. फैमिली, जिस फैमिली में हम लगाते हैं रूमीज़ के थ्रू, उनका फीडबैक भी हम लेते हैं वर्कर से कि मतलब फैमिली ठीक है या नहीं, आपको ठीक से सब कुछ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है. तो आई थिंक वो वर्कर वैल्यू कर, सॉरी यार मैंने 2 बार हिला दिया. नहीं कोई तो वो वर्कर वैल्यू करता है काफ़ी. हाँ. क्योंकि इस स्पेस में कोई और ऑर्गेनाइजेशन वर्कर्स की सुन नहीं रही है. तो यू विल सी कि बहुत सारे घरों में वर्कर्स हैं, एजेंट्स ने छोड़ा हुआ है, कुछ भी इशू उनको आ रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है, बस वहाँ पे करो, काम करो. तो ऐसा भी कभी होता है कि मे बी हेल्पर से कोई गलती हुई हो एंड आपको बीच में हेल्पर वगैरह चेंज करना पड़ा हो?
हाँ ये तो बहुत होता है, बहुत होता है? मतलब कस्टमर्स बहुत पर्टिकुलर होते हैं ऑनेस्टली, और ठीक है, मतलब उनका राइट भी है होना, अगर वो एक सब्सक्रिप्शन फी दे रहे हैं, एक सैलरी हायर दे रहे हैं, तो दे वुड एक्सपेक्ट अ सर्टेन लेवल ऑफ यू नो प्रोफेशनलिज्म। एंड इट हैज़ हैपेंड फॉर एग्जांपल कि किसी से बहुत मेजर क्रॉकरी टूट गई और कस्टमर को बर्दाश्त नहीं था, हाँ सो दे हैव आस्क्ड फॉर रिप्लेसमेंट, या फिर खाना समझ नहीं आया, वेरी कॉमन इशू, होता है, हाँ। राइट, कि आपके घर में जैसा खाना बन रहा है वर्सेस मेरे घर में जैसा खाना बन रहा है, अभी आप खाओगे। वी डोंट नो इफ यू वुड लाइक इट, राइट, देयर इज अ टेस्ट दैट Difference है। एवरी हाउस होल्ड हैज, सो उसके Right. बेसिस पे रिप्लेसमेंट्स आती हैं। So, या वन मोर क्वेश्चन कि जैसे आपने 23 पे स्टार्ट किया था, यू ड्रॉप्ड आउट ऑफ ISB एंड बिफोर शार्क टैंक आई थिंक यू रेस्ड फंड्स फ्रॉम 2AM VC एंड 100XCC दोनों से। सो उस टाइम पे इफ यू आर एबल टू लाइक इफ यू आर कंफर्टेबल टू शेयर क्या क्या डाइल्यूशन रहा होगा आपका? And- डाइल्यूशन, हाँ। आई कांट डिस्क्लोज द हाँ, वैल्यूएशन। हाँ मैं वही पूछ रहा था। एंड उनको कैसे कन्विंस करा कि आई थिंक आपका कितना रेवेन्यू हुआ होगा उस टाइम पे कि यू आर एबल टू कन्विंस 100x एंड 2M तो चलो प्री सीड पे आ जाता है, या एंड 100x का आई थिंक चेक 1.5 CR होता है, राइट? अब भी 1.5 होता है, तब 25 लाख होता था और अच्छा। 7%, अब होता है आई थिंक 1.5 और 15%। राइट। So up to, I think they've wrapped up the fund, but so at that time it was 25 lakhs for 7%, राइट। and yeah, you're right. So even 2AM VC comes at initial thesis level only. राइट। You need to have some traction, and for us it wasn't just 2AM VC, it was a 4.5 crore round, which was with some angel investors, 2AM VC and Magic Fund, which was also a US based investor, micro VC. ओके। So it was right after getting into 100x. They have like I think a month long, मेरे को याद नहीं था, but month long workshops होती हैं जो हमने अटेंड करी थी in person बॉम्बे राइट। जाके, राइट। and right after that the round happens. डेमो डे जो हाँ, डेमो डे होता है और फिर राउंड होता है, तो डेमो डे अब तो इन पर्सन होता है, उस टाइम पे ऑनलाइन था बिकॉज कोविड। सो विद इन द डेमो डे जब ख़त्म हुआ था उसके 11 दिन में हमने राउंड क्लोज कर दिया था, एंड एट दैट टाइम वी वर आई थिंक डूइंग 1 crore per year ओके। as our revenue, and GMV was about 7 crores. So ओके। today our GMV is 150 crores. So 150 crores। the difference from 7 to 150, but 2AM and every other BC which came at that point of time came because of I think the story, the conviction of the founders, and not so much about numbers, because इस early stage पे Pre-seed में numbers तो- you don't have much. करेक्ट। नहीं अभी कुकिंग स्टार्ट भी कर सकते हैं हम वैसे। हाँ, तो एक्चुअली नहीं तो हम बात ही करते रहते हैं ना, हाँ। ठीक है। सो दीदी तो बैठी, मैं ही कर रही हूँ, उन्होंने तो नहीं आपको नहीं करना, मैं ही कर रही हूँ, बैठ जाओ। लोगों को लगेगा मुझे आता नहीं। देखो मेरे को कुकिंग का कुछ नहीं आता है, मैं सिर्फ मैगी बनाता हूँ, वो भी 2-3 महीने में एक तो बार। फिर ये कुकिंग शूट क्यों हो रहा है जब इसे आता नहीं है, सब कुछ मुझे बनाना पड़ेगा। नहीं, जस्ट किडिंग। नहीं मेरे को हमने हॉस्टल डेज में बनाया था कुकिंग, हाँ। लास्ट टाइम तो करी थी, उसके बाद तो कभी नहीं करी। वो भी इतना मेस्ड अप होता है ना, अगर आप बॉयज हॉस्टल में कुछ कुक कर रहे हो, कोई कुछ और ले गया, कोई बर्तन कहीं और पड़े हैं, कुछ नहीं पता। हमें बर्तन मिल रहे हैं 3 महीने बाद बिना धुले। वाओ, कौन से कॉलेज से आप? UPS देहरादून। ओके। तो हमने बहुत उसके बाद से डिसाइड किया दिक्कतों से निकले हैं हम लोग बहुत। मुझे ऑनेस्टली कुकिंग का कुछ नहीं आता, मैं खाने में Okay. भी दिक्कत करता हूँ। हम लोग बना रहे हैं आज पेस्टो पास्ता। ये बहुत इजी होता है, इसलिए मैंने चूज़ किया है, बिकॉज एक्चुअली आई डोंट कुक एवरी डे, इट बिकम्स वेरी हेक्टिक विद वर्क, बट आई थिंक आई लाइक कुकिंग डिनर्स मे बी once or twice a week, तो Okay. तब मैं कुछ डिफरेंट बनाने की कोशिश करती हूँ। सो वी हैव सम बेसिल, सम मशरूम्स, सम चेरी टोमेटो, गार्लिक, ऑर्गेनो, लेमन जूस एंड सॉल्ट, जो सब सुनीता दीदी ने किया है। आई एम जस्ट गोइंग टू असेंबल एवरीथिंग, बट हाँ, बेसिक प्रिपरेशन डन है। एंड वी हैव सम बॉइल्ड पास्ता which requires I think a little bit more boiling. It's a little undercooked. So I'm going to do that. But you can continue to talk, है ना? हाँ श्योर। सो अभी अभी आपके 3 मेजर क्या कॉम्पिटिटर्स होंगे दैट यू थिंक जो आए हैं? आई थिंक वन इज इंस्टामेट। Instamade, yeah. But Snapbit and Pronto are 2 companies that have come up. Okay. But they're doing on demand and they're doing cleaning.
एंड so आई थिंक 15 पर आवर minutes का में। चल रहा है उनका. per hour का चल रहा है. Yeah. So it's the same industry but slightly different service sector and service offering. क्योंकि हम लोग recurring service देते हैं and they do mostly on demand. So, आपके लिए आई वुड से काफ़ी एडवांटेज है बिकॉज MRR सेट हो जाता है. हाँ, I mean they have raised very very heavy funds but I feel यार ये industry इतनी ज़्यादा overlooked थी इतने time से. It's great that people are coming into this space because मतलब it really needed more players for it to be organized. You know, you can't change such a big industry alone. So it's always good if players come in. कंपटीशन होगा तो आपकी भी ग्रोथ फास्ट होगी. Yeah. सो yeah. डू यू थिंक कि आपका फ्यूचर प्लान क्या है? डू यू वांट टू बिकम समथिंग लाइक जोमेटो? लाइक आपने उन्होंने भी क्या करा, एक अनऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री है उसको Yeah. पकड़ा एंड दे ऑर्गेनाइज्ड इट. Yeah. एंड अभी आई थिंक उनके पास इतने सारे क्या कहते हैं रेस्टोरेंट्स का डाटा है. दे हैव लॉन्च्ड डिस्ट्रिक्ट, हाइपर प्योर Yeah. एंड व्हाट नॉट. मतलब Yeah. सब कुछ What मस्त not चल रहा है. actually? Yeah. हाँ. हाँ. अब तो पता नहीं प्लेन्स भी बना रहे हैं आई थिंक. Planes बना रहे हैं. हाँ, उन्होंने इन्वेस्ट करा ना इन Oh. आई थिंक उसमें. They must have invested, drones but they're and not like. everything. नहीं, they are planning to go into that space. Wow. I had no idea. Okay. So, मतलब I think also आपको भी do you want to have kind of like a monopoly on this in this field? Yeah, honestly, this space doesn't require monopoly because you easily like 3-4 big players can coexist because it is Right. such a big space. And I think I on would है. say on. But I think honestly, Urban Club would be a closer example of what we want to do, which is कि एक जो उनका professional है वो एक standard maintain करता है. Right. एक you know Urban Club की services are good. yeah एक level of SOP set है, right? Right. So that's I think closer to what we would want to do, what we actually aim to do, and then eventually expand to other Middle Eastern states. हाँ, ये ज़्यादा प्लान है. Okay. So आपने start कौन सी niche से करा था? We didn't start with a niche. हम लोग this is a founder lesson which is that fuck ups. होते हैं. This will go in BTS. But you know, initially you should start with a niche for sure because you have limited resources. उस टाइम पे ना इतना ज्ञान मिलता नहीं था. अभी बहुत लोग ज्ञान देने के लिए रेडी है, बताने के लिए कि niche से करना चाहिए. उस टाइम पे we did everything. We started with gardener, pet cleaners, pet groomers, pet walkers, drivers, cooks, cleaners और all-rounders तो थे ही. So that became too much, and then we reduced our services to just cook, cleaners and all-rounders. Okay. So I think this is something जो हमें भी अनजॉब के अंदर implement करना है. बस अभी हमारे पास जो majority लोग हैं on the platform, they are experts in AI content creation, entertainment and video editing. बाकी फिर हमारे पास रिक्वायरमेंट्स आती हैं एड्स ला दो या फिर इस टाइप की फ्रीलांस रिक्वेस्ट आती है कि हमें ऑफलाइन चाहिए कोई पर्सन सेल्स के लिए. बहुत मुश्किल है ना मना करना, ऐसा लगता है हाँ. पैसा जा रहा है हाथ से. हाँ. लगता है Yeah. क्योंकि एक बड़े ब्रांड्स हैं एंड Yeah. हमें पता है कि एक बार अगर वो फ्रीलांसर्स वर्क करेंगे तो वो रिकरिंग करते रहेंगे क्योंकि नीचेस Correct. ऐसी हैं. Correct. But जबकि- नहीं कर सकते. हाँ. That's the hard decision that one has to take being a founder कि you have to say no to a lot of things that you know कि अभी सेंस नहीं बनना, मे बी बाद में बनेगा, बट दैट्स अ रेवेन्यू लॉस जो होता है इनिशियली, बट वो बाद में बहुत हेल्प करता है बिकॉज सब कुछ अगर स्टार्टिंग से कर दोगे तो यू आर नॉट आप किसी भी इंडस्ट्री में एक्सपर्ट नहीं बन पाओगे. राइट. ना मुझे कुक्स की एक्सपर्टीज होगी, ना मुझे ड्राइवर्स की एक्सपर्टीज होगी इफ आई एम डूइंग 10 थिंग्स बिकॉज आई हैव लिमिटेड रिसोर्सेज. सो आप जब आए थे मार्केट में आपको कोई कंपटीशन भी था? तब तो कुछ भी नहीं था. वी हैड फर्स्ट मूवर. देयर वाज ऑफ कोर्स बॉम्बे में बुक माई बाई है ओके. which has been I think in the space for the last 10 years I guess, and Chef Cart करके उसी टाइम पे हमारे टाइम पे ही स्टार्ट हुआ था. They're both still there. अभी आई थिंक गुड़गांव में भी आया है. देयर इज वन मोर. बुक में भाई गुड़गांव में भी आए हैं. आई थिंक एक ऐप है जिसमें आप शेफ बुक कर सकते हो. which company? I don't remember the name. हाँ मतलब अब तो यार देखो Shark Tank के बाद the space got a lot of attention. Right. So a lot of people started coming in, but पहले there weren't so many players. So Yeah.
वन मोर थिंग, जैसे आप शार्क टैंक में आए तो आप एक ऑलरेडी डिसेंट साइज ब्रांड थे, या देन उसके बाद शार्क टैंक में रेस करने के बाद डू यू थिंक, मतलब ऑब्वियसली बिफोर आफ्टर हर कोई पूछता है कि आपके पहले क्या था, बाद में क्या ग्रोथ हुई, ठीक है वो विजिबल है ग्रोथ, बट व्हाट इज़ द, कहते हैं ना, इज इट मोर लाइक कि शार्क्स एंड आपके बीच का कनेक्शन कैसे चेंज हुआ उसके बाद? लाइक जैसे हमने अभी एक प्रीसीड रेस कराया लास्ट वीक, एंड हमें जो हमारे सीनियर एंटरप्रेन्योर्स बोलते हैं कि आप इन्वेस्टर को फंडिंग रेज कर लोगे तो आपको बहुत प्रेशर आ जाता है, यू हैव टू डू वीकली कॉल्स एंड ऑल दैट। व्हाट, ये किसने बोला आपको? ये झूठ है। हाँ, तो वही जानना चाहता हूँ मैं कि शार्क्स और No आपके साथ ऐसे investor कैसे has होता the है? time to have weekly calls or even monthly calls. I don't think I have a single investor जो monthly calls करता है, and I have 26 investors on my cap table. Okay, So nobody has the time. People put the money thinking that founder knows how to do their job, right, and that's what they believe. And कोई कुछ change नहीं होता, ये expectation पहले भी clear होती है. You will have, like, if you have an issue, you reach out to them, they'll help you. Whichever investor, whether a shark or otherwise. right. I'm just talking like I'm giving a general perspective. पर ऐसा नहीं होता कि भाई आपसे कोई, मतलब MIS में भी क्वार्टरली कोई मांगते हैं people who are still like actively involved, but otherwise nobody has the time यार. ये आप imagine ना, जो भी most investors हैं, they have money because they've done something in life. Correct. So they have to do that well to continue to get that money. So they don't have the time to ask you कि कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है. उन्होंने कहा कि सोच समझ के करते हैं वो भी इन्वेस्टमेंट, Yeah. एक बार हो गया तो कैरी आउट हो जाएगा. Yeah. सो जब आपने स्टार्टिंग में फंड रेज करा था, हाँ. तो जब आप बिल्कुल एक प्री सीड या सीड रेज करा होगा आपने, हाँ. तो चलो हमने तो कर लिया, बट हाँ. व्हाट अबाउट द अदर पीपल, क्योंकि हमारे पास काफ़ी Yeah. सारे अर्ली स्टेज एंटरप्रेन्योर्स हैं, Yeah. लाइक मोर देन 1000 आई थिंक, Yeah. जो कि ये सेम क्वेश्चन पूछते हैं बार बार कि इफ़ आई वांट टू रेज टू एन इन्वेस्टर, Yeah. ठीक है, 2 पॉइंट्स आते हैं. एक तो आपको रेवेन्यू अट्रैक्शन चाहिए होता Yeah. है ना, दूसरा आप स्टोरी कैसे फॉर्म करोगे अबाउट योर स्टार्टअप कि उनको कन्विक्शन आ जाए. ट्रू यार. एक तो पहली बात मुझे लगता है कि मोस्ट पीपल थिंक कि पैसा मतलब रेज करना ज़रूरी है टू बी एबल टू डू बिजनेस. आई थिंक दैट्स वेयर दे गो रॉन्ग, बिकॉज इवन व्हेन यू टेल दिस टू एन इन्वेस्टर, राइट, एनीबडी वुड गेट रियली पिस्ड, राइट, कि ये कहाँ से थीसिस आ गया. मतलब बारिंग सम इंडस्ट्रीज जिसमें कैपिटल रिक्वायरमेंट स्टार्टिंग से ही बहुत हैवी है, यू शुड फर्स्ट हैव सम traction, I feel, if you're a first time founder, to get funded, because funding is not like a piece of cake. It's not that easy for everyone to get funded, especially decent big enough rounds. तो उसके लिए आपको थोड़ा अपना ट्रैक्शन होना चाहिए आपका. एंड आई वुड से दैट और थोड़ा क्वांटिटी दिखाओगे आप, लाइक कितना, हाउ मच इज थोड़ा. हाँ, आई थिंक सब नीश में अलग अलग होता है वो तो. या दैट्स व्हाट आई वुड से कि हर इंडस्ट्री का अलग स्टैंडर्ड है. पर आई वुड से कि some good number of customers should be coming back to you to prove that you have certain amount of PMF, product market fit, which is to say कि हाँ, मतलब आपका प्रोडक्ट इतना वर्दी है कि लोग वापस आ रहे हैं आपके पास. Okay. That's one. Second is यार थोड़ा could differ यार, it could really differ कि मैं आपको बताऊँ D2C के अंदर जब हमने स्टार्ट करा था, हाँ, back then I was 18, हाँ, so it's been 4.5 years, 5 years almost. yeah, तो उस टाइम पे है ना 10 lakhs 12 lakhs का काफ़ी होता था हमारा. अभी इट्स लाइक कि फ्लोइड VC है या कोई भी VC है, देता है कि आपको 50 lakhs का मिनिमम MR चाहिए, क्योंकि उनको पता है कि D2C अभी चल जाएगा, पर आफ्टर इट टचेस 40-50 lakhs सस्टेन करना बहुत मुश्किल आता है, क्योंकि जो रोआस होता है वो बहुत रैपिडली करता है. of course, yeah. सो लाइक ये तो D2C का एग्जांपल है, बट लेट्स से कोई SaaS में जा रहा है, That's what I'm saying. हर इंडस्ट्री का ना अलग KPI सेट होता है. फॉर एग्जाम्पल इन D2C आई थिंक रिपीट बहुत मैटर करता है कि अच्छा आपका पहली बार तो आपने ऐड दिखा के किसी को बेच दिया, बट उसके बाद वो बंदा फिर से वापस आया या नहीं आया, व्हाट वाज देयर फीडबैक लाइक, राइट. करेक्ट. एक ये भी एंगल है और एक दूसरा एंगल ये भी है कि बहुत फाउंडर्स बिना कोई ट्रैक्शन के पैसा उठा लेते हैं, बट आई डोंट थिंक दैट्स एवरीवन स्टोरी. दैट्स अ वेरी स्मॉल, ये IIT के फाउंडर्स के साथ होता है. यू नीड टू हैव अ वेरी गुड पेडिग्री फॉर दैट. फॉर एग्जाम्पल इवन I think some of our competitors had no traction,
and they are on to become a unicorn. So they raise so much. नहीं, आई थिंक हमने भी अभी प्री-सीड पे ही उठाया है. तो मतलब हमारा ट्रैक्शन था ना? ट्रैक्शन नहीं था. नहीं था. नहीं था. हम कितना था मतलब? कुछ भी नहीं था हमारे पास. And how much did you raise? 50 lakhs. So that's relatively a smaller round. Right. I think pre-seed पे maybe yes, that's maybe doable because if somebody believes in you. Because मैं आपको बताता हूँ, it is not like a typical angel investment जो हुई है. It's more like कि हमने जो last time 4 साल से एक brand run करा, हमारे जो उस टाइम पे उस ये जो क्रेडिबिलिटी आई कि हमारे जो आसपास के कनेक्ट में फाउंडर्स थे, जो सीनियर फाउंडर्स थे, उन्होंने ही फंड करा. That's what I'm saying. If you're a first time founder, the journey would look very different. क्योंकि अगर आपके पास कुछ है शो करने के लिए, for example, you had your earlier startup to prove that you know the business कि कैसे करते हैं and you've been a founder before. I think that is still and maybe a easier journey, but comparatively, yes. But first time founder जिसको कुछ पता ही नहीं है, उसको बस करना है, उसके लिए टफ है. तो उनके लिए I think one advice would be to really reach out to accelerators. मतलब सबको करो, go to tier 1 also everyone, but ideally जैसे हमें भी 100x ने मतलब investment दिया, उससे पहले कोई दे नहीं रहा था. So we went to Antler, we went to 100x, we went to these kind of accelerators, and then उसके बाद 2MVC आया. 2MVC फर्स्ट टाइम में आना बहुत मुश्किल है. ओके. या ठीक है. सो आपने स्टोरी कैसे फ्रेम करी थी? हाँ, ये तो स्टोरी चेंज ही होती रहती है. मतलब एक्चुअली विजन वही है, बट हाउ यू प्रेजेंट इट फ्रॉम वन राउंड टू द अदर रियली चेंजेस. फॉर एग्जांपल इनिशियल स्टोरी वाज वेरी बेसिक, राइट, कि हम लोग वर्किंग प्रोफेशनल्स को सॉल्व कर रहे हैं ये इशू और वर्कर्स के लिए भी कर रहे हैं. योर स्टैंडर्ड स्टोरी. द स्टोरी नाउ इफ़ यू वांट टू रेज इज़ कि हमने इतने लोगों को सर्व कर दिया है. दिस इज़ हाउ वी प्लान टू स्केल. दिस इज़ हाउ these are the markets we will target. These are kind of unit economics we're looking at, margins that we're looking at. अब KPIs आ गए हैं पहले. हाँ, exactly. अब कोई नहीं, अब मैं इन्वेस्टर को बैठ के ये नहीं समझा सकती कि मैं ब्रूमीज में हम क्या करें. They don't want to listen to that. They know it. Like move on. हाँ, मतलब आप scale कैसे करोगे is the question. So story changes with every round. But हाँ, I think for early stage founders, it's very very important to be clear on your story. Stories are, I mean, mission and vision कि तुम्हें क्या करना है. For example, if you are raising a round and you tell your investors कि अभी आप कह रहे थे ना कि 2-3 टाइप की सर्विसेज और थी, और उससे भी अगर वो बोल दोगे तो बोलेगा इसको तो क्लैरिटी नहीं है, यू नो, एज एन एग्जाम्पल कि नहीं करना. तो फाउंडर, आई मीन इनिशियली सारे इन्वेस्टर्स फाउंडर्स पे बेट करते हैं कि ये फाउंडर ठीक है या नहीं है. स्पेशली आई थिंक मैंने ये भी देखा है कि आपकी जॉब भी मैटर करती है. अगर आप उसी नीश में जा रहे हो, फॉर एग्जांपल अगर आप एक डॉक्टर हो, आप कार्डियोलॉजिस्ट हो, आपने पूरे टाइम हार्ट देखा है फॉर 20 years एंड नाउ यू वांट टू मेक अ मिनी ECG मशीन, तो तब भी इन्वेस्टर्स आई थिंक फंड करते हैं. हाँ, इंडस्ट्री नो हाउ इम्पोर्टेंट है, पर जैसे हमारे में कोई ऐसे इंडस्ट्री नो हाउ था नहीं. हाँ, सो वही मेरा क्वेश्चन है कि डू यू थिंक कि बिफोर स्टार्टिंग अ स्टार्टअप यू शुड डू अ जॉब, वो मैटर करता है ऑन योर स्टार्टअप नीश, या फिर आप ऐसे ही कर सकते हो? नहीं करता. जैसे मैंने जो अपनी जॉब करी उससे मुझे कुछ ब्रूमीज में आई डोंट थिंक कोई मुझे एज मिला. पर हाँ, इन जनरल कि काम कैसे करते हैं लाइफ में, हाउ डू यू बी विद कलीग्स, हाउ डू यू मैनेज टाइमलाइंस, राइट, हाउ डू यू स्पीक टू क्लाइंट्स इज मे बी समथिंग दैट आई लर्नड. बट फंक्शनली मैंने कुछ नहीं सीखा. बट हाँ, मतलब अगर सपोज फॉर एग्जाम्पल Snapit, for example, is the founder worked for I think 3-4 years in another startup, which was an operations heavy startup. Okay. So I think then that expertise would really matter, right? So even in your kind of a play, you had seen marketing in your D2C brand, you had seen ops, whatever, 10 different domains. So that would really matter to an investor. कि हाँ वो यू नो इट्स एडिंग ऑन टू योर थिंग. सो दोनों तरफ होता है. काफ़ी बार फर्स्ट टाइम फाउंडर है, पहले नहीं किया है, करते हैं लोग पहली बार, और काफ़ी बार होती है कि आपको अब एक्सपर्टीज आ गई है फ्रॉम अदर थिंग्स. बट आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट टू मोर देन दिस. द क्वेश्चन इज वाई आर यू द राइट पर्सन टू बी सॉल्विंग फॉर दिस.
वर्सेस कि आपको इंडस्ट्री नो हाउ है या नहीं है. दैट कुड बी एनीथिंग. फॉर एग्जाम्पल इन माई स्टार्टअप इट वॉज कि वैभव एंड सौरभ दे हैव द NGO बैकग्राउंड. आई strongly feel for customers because I have been a customer myself with parents working, right? Correct. And I had worked in the marketing domain thoda sa, so I had that expertise. So more than कि आप कर सकते हो या नहीं, आपको क्यों करना चाहिए, आपकी पर्सनल स्टोरी काफ़ी बहुत मैटर करती है. सो अभी हम कहाँ तक पहुँचे हैं कुकिंग स्टेज के ऊपर? अभी हमने पास्ता बॉईल कर लिया है, ठीक है. हमने मशरूम और cherry tomatoes को सॉटे कर लिया है. ठीक है. अब हम पेस्टो बना रहे हैं. ओके. So pesto पेस्टो इज is अ सॉस, राइट? yes. Do you know what is it made of? नहीं. It's made of basil. बेसिल. You know what is basil? आई डोंट थिंक सो. Ba- भाई जज मत करना. नहीं यार, ये तो मेरे को भी अभी 2 दिन पहले पता चला. Just kidding. But basil is English tulsi. ओके. Yeah. So it is. हाँ. Smell it. You will. It has a very strong smell. So we're putting some basil, some walnuts, some garlic, some lemon juice, and some chilies. जो यहाँ पे रखी नहीं है. एक सेकेंड. सब रिकॉर्ड हो रहा है, मैं घर पे बनाऊंगा. वो बेचारा इसमें क्या पूछेगा. दीदी मिर्चें कहाँ हैं, कहाँ रखी होती है मिर्चें. ये मेरा घर नहीं है, मुझे कोई जज नहीं करेगा. मेरी मम्मी का घर है. आई कम हियर लिटिल लेस ऑफन. ठीक है. बाय द वे इससे मेरे को याद आया कि धुला बना. यू एंड वैभव मैरिड, राइट? या सो हाउ डिड इट ऑल हैपन? मतलब आप पहले को-फाउंडर्स बने, देन आप हाँ. मैरी हुए बाद में. हाँ, मैरी हुए. मैरिड हुए, यू गॉट मैरिड. ठीक है. Yeah. तो व्हाट वाज द प्रोसेस? Exactly what you said. व्हेन डिड यू डिसाइड कि यार हाँ अब ठीक है? एंड आई थिंक बीइंग जैसे अभी मोहित सदानी है, ही इज द फाउंडर ऑफ मॉम्स कोड, उनका भी सेम स्टोरी है. तो आई थिंक उन्होंने, उनकी पहले शादी हुई थी, देन बाद में उन्होंने स्टार्ट करा था. तो आपको कोई प्रोज एंड कॉन्स लगते हैं? हाँ होते हैं ऑब्वियसली प्रोज एंड कॉन्स ऑफ. सो बट आई हैड ऑलवेज सीन मेरे मॉम डैड दे वर्क इन द सेम फर्म. उनकी खुद की फर्म है एंड मैरिड है ऑब्वियसली. तो आई हैड सीन द प्रोज एंड कॉन्स बिफोर ऑल्सो. पर ऑफ कोर्स खुद एक्सपीरियंस करा वो अलग था. बट वैभव और मैं वैभव को पहले नहीं जानती थी, लाइक आई सेड. ओके. We only met through breweries. We started working together. करेक्ट. And then I think 5-6 months into working, we started dating. ओके. We dated for 3 years, then got married. ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं था कि कर लेते हैं या मतलब families knew already. And I think right after Shark Tank, we decided to चल अब कर लेते हैं. When it was aired. ओके. अब तो सेट है. हाँ. मतलब आपने डिसाइड कर लिया कि अब तो सेट है. हाँ. एक चीज सेटल डाउन हो गई है, तो हम भी अब हाँ relax कर मतलब सकते we thought कि actually I married young. I was 26 when I got married. And Okay. ऐसे अगर if I was not dating him, तो I don't think I would have married that early. Same for him. He got married when he was 28. ओके. So I mean हमारी कोई भी फ्रेंड सर्कल में किसी की शादी नहीं हुई थी. It was just us. We started the scene और अब इस साल बाकियों की शादी हो रही है. So which is 3 years into 2.5 years, 3 years later. So हमें बस ये था कि यार why delay, and we are I think strong believers that if you found someone, then spend more time with them, marry early, you get more time to settle down in life. So Travel. like do you recommend other founders to follow on the same footsteps? हाँ यार, why not? Like I think it really depends on your equation with your partner. With Vaibhav, I feel lot of workload is shared. If I am sick, he really takes care of everything. That happens with the third founder also. But obviously between a husband and wife, the level of understanding is much higher. बट जैसे अभी ये सेम चीज़ अभी हमने देखी थी ऑफिस में, हमारे गेस्ट आए थे अगेन अ कपल Yeah. जो कि कुछ फाउंड कर रहे थे इन द सास स्पेस, बट उनका फिर बीच में ब्रेकअप हो गया एंड Oh shit. वो पूरा हाँ, actually I would say actually disclaimer. Be careful of dating your founder. वो गाड़ी हमारी जा चुकी थी, हम लोग ऑलरेडी डेट कर रहे थे. हाँ. But yeah, that is you right. This situation I've seen in many founders where you start dating, and then you obviously you end up breaking up. You end up वो breaking स्टार्टअप भी up. चला जाता है. और वो स्टार्टअप का डायनामिक्स पूरी तरह हिल जाता है. But I think a marriage is a slightly more solid foundation.
Right. राइट सो हमारे केस में तो मुझे लगता है कि आई डोंट थिंक कोई और समझता कि हम इतना लेट नाइट क्यों काम करते हैं और यू नो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड अ founder's perspective. In fact, I've seen many divorces happen where the wife or the husband is not your co-founder. It becomes very difficult for someone else to understand कि इतना late क्यों करना है? Why can't you prioritize मतलब marriage over work on a lot of days? वो इश्यूज नॉर्मली आते हैं पर आपके में नहीं आते आई थिंक. कि हम दोनों हमें इफ ही इज एट वर्क एट 12 I'm like ग्रूमीज के लिए तो है ना मतलब आई कांट से कि क्यों हो मतलब I'm like ठीक है whenever you're done just come home you and cannot you eat. complain कि आपका बॉस तो ऐसा क्यों बुला like रहा है. there's There's no no boss. yeah you're in fact most of the days he's telling me कि can you just keep your phone down and can we just not talk about work. That's in fact a more a scenario that happens often. So yeah so वो I think बहुत मुश्किल है to find that compatibility in someone else. But if you do, that's also good balance. Both situations are very nice. अगर आपको कोई पार्टनर ऐसा मिले जो आपका फाउंडर आपका को फाउंडर नहीं है सो यू गेट दैट बैलेंस राइट द अदर पर्सन इज लिटिल बिट मोर रिलैक्स काम gives you a different perspective, gives you non-roomies or non-work, you know, Correct. setup versus ये वाला setup भी वही अच्छा है. डिफरेंट लाइफ के सिनेरियोज लेके आता है आपके सामने. Yeah. तो उससे- This setup is also quite nice. I wouldn't do anything differently if I could. Because I feel कि जितना मुझे supported feel होता है जितना वैभव को supported feel होता है Right. हमारे vacations एक साथ हो सकते हैं. You know, everything is kind of like aligned. We can whatever plan a family when we want to. Basis our work, it's going to be similar timeline. All of that. So again, two more questions. One is कि like before getting married, आपका प्रोफेशनल लाइफ कैसे चेंज था एंड उसके बाद क्या इम्पैक्ट आया ऑन द स्टार्टअप. We've come to a point where अब लीडरशिप टीम ऐसी है कि अगर हम तीनों भी ना हो तो द वर्क डजंट गेट हैम्पर्ड क्योंकि ठीक। डेलीगेट हो चुका है 5 साल हो गए हैं अब राइट. तो ऐसा नहीं होता कि हम दोनों छुट्टी ले रहे हैं तो क्या होगा सौरभ पे आ जाएगा ऐसा नहीं है. अभी ये सौरभ वैभव दोनों छुट्टी पे थे मेरे पे आ रहा था सारा काम. सो it's literally like that happen and they are best friends so they go together out very often. Like I think they have more trips than I do with Vaibhav. Not so much, but मतलब not really, but like तब भी मतलब I feel that compatibility, that understanding between three founders is very strong. तो वो ऐसे ऐसा issue नहीं आता. ठीक है. I think we need some more basil. थोड़ा कम है. दीदी इसको ना थोड़ा वो कर दो, डंडी हटा दो. Rule is that you shouldn't put any water, so only put olive oil while you're. सुन भी नहीं रहे इसको फर्क भी नहीं पड़ता देख तो. So usually ऐसे बनती है basil. It's a little दरदरा texture. खाने का पता चलेगा. खाने में पता चल. हुआ? ये वाला है. ये वाला है. हाँ. नहीं मैं आलसी नहीं हूँ. थोड़ा मतलब मैं कोई काम नहीं करा रहा पर मैं आलसी तो नहीं हूँ. हाँ मतलब मुझे काम आता नहीं है तो हाँ. वही ना अपनी स्पेशलिटीज़ में काम करो. सो लाइक आई थिंक मेरे मेजर क्वेश्चंस तो सॉर्टेड हैं बट एक ये चीज़ है जो मैंने रिसेंटली फेस करी है एंड आई हर्ड इट समवेयर एंड मैंने भी इम्प्लीमेंट करी है बट आई वांट टू गेट योर इनपुट्स क्योंकि लाइक हम ऑलमोस्ट इन द सेम नीश हैं Yeah. ना in Yeah. a different sector but Yeah. similar operations. Yeah. So there is a phrase called you can either be a good founder or a kind founder. हाँ. What do you think about that? I don't think that's true. मतलब I feel one should learn to balance it out. Kindness हमेशा नहीं कर सकते पर ऐसा भी नहीं कि कभी भी नहीं कर सकते. मतलब Okay. some decisions are tough, but it's not this or that always. Okay. मतलब हाँ company first, but if at the end of the day you don't have people supporting you and if you don't have the right people in your team and if they don't feel valued and if they don't stick around, you don't have a company at the end of the day. I think pesto is done. Yeah, you were saying something. So like one more thing that I want to know personally. Yeah. कि since we are unjob.ai, Yeah. so we are kind of like against the
टॉक्सिक कॉर्पोरेट कल्चर जो अभी इंडिया के अंदर चल रहा है कि 9:30 आपको एंट्री करनी है, 6:30 से पहले आप पैक नहीं करने चाहिए, एक्सेट्रा जो भी आपका चल रहा है कि आप रिमोट वर्क कर रहे हो तो आपको पूरा टाइम पीसी में लॉग इन होना चाहिए, ऑल दैट. What do you believe in? सो हाँ, मैं आपसे वही पूछ रहा हूँ. What do you believe in? I want to सो know first. हमारे में इट्स अ लिटिल मोर चिल ना, क्योंकि हम मोस्टली वी हैव अ रूल अभी इन द फर्स्ट 20 पीपल टीम जो भी हम डेवलप करेंगे, हाँ. अभी वी हैव 15 पीपल टीम, हाँ. तो हम किसी को भी 26 के ऊपर नहीं लेंगे इन द एज. ये बड़ा नॉन टॉक्सिक है. वाह 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 वाह. नहीं, दैट इज व्हाट आई हैव सीन कि हाँ. आप फिर बहुत पर्सनल लाइफ में बिजी हो जाते हो, है ना. हाँ. सेकंड चीज व्हाट आई हैव सीन इज कि हमने एक रूल बनाया कि है ना, देयर इज नो एंट्री एंड एग्जिट टाइम इन द ऑफिस. Okay. आप कभी भी आ सकते हो, कभी भी जा सकते हो. वी गिव यू 100 पॉइंट्स एट द स्टार्ट ऑफ द मंथ एंड वी डिडक्ट एवरी पॉइंट एट एवरी मिस्ड रिपोर्टिंग और डिलेड वर्क. अच्छा. ठीक है. प्लस वी ऑल्सो गिव यू मोर पॉइंट्स इफ यू हेल्प द अदर पर्सन. ठीक है. एंड अगर आप एक टाइम से पहले या कुछ वर्क करते हो, मतलब जैसे नॉर्मली क्या होता है इन एनी टेक ब्रांड या आप एक ऐप में आप चला रहे हो, तो आपका होता है कि आपको 2 घंटे के टास्क मिलते हैं कि आपको 2 घंटे में वर्क क्लियर करना ही करना है. हमारे में इट्स मोर लाइक कि आपको पूरा दिन का टाइम है, यू हैव 10 डिफरेंट थिंग्स कंप्लीटेड बाय द एंड ऑफ द डे. कोई देख नहीं रहा, रात को 11 बजे से पहले बस मार्क कर दो उसको नोशन पे. ठीक है. एंड उस पर क्या होता है कि हम ग्रेड्स बनाते हैं कि आपके 100 लेट्स आपके 100 स्कोर थे आपके स्टार्टिंग में, इफ़ यू आर 95 प्लस फॉर द नेक्स्ट 3 months वी विल गिव यू अ 50% हाइक फॉर द 1 month. ठीक है. तो एक उनको वो हो गया, मोटिवेशन हो गया कि जैसे कॉर्पोरेट में आपको 1 साल में मिलता है, आपको 3-3 महीने में गिविंग यू मेजर कहते हैं ना बोनसेस. सेकंड इज कि इफ यू फॉल बिलो 50 इमीडिएट ऑफबोर्डिंग. यार आई वुड से हर चीज़ के ना प्रोज एंड कॉन्स हैं. लाइक फॉर एग्जांपल इफ यू आर एबल टू मैनेज समथिंग लाइक दिस, ग्रेट, राइट, बट आई डोंट थिंक लीडरशिप इज दैट सिंपल. लाइक नॉट, आई फील लाइक ये शायद सारे टाइप के लोगों के साथ ना चले. हाँ. राइट. एंड मे बी इन द प्रोसेस सपोज किसी को ये नहीं जम रहा, इट्स नॉट नेसेसरी दैट दे आर नॉट ग्रेट पीपल और ग्रेट एम्प्लॉयज़, इट्स जस्ट दैट पीपल वर्क डिफरेंटली, राइट. यू सो इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि लोगों का मोटिवेशन लेवल क्या है. लोग किस चीज़ से मोटिवेट होते हैं. सम पीपल गेट मोटिवेटेड बाय मनी, सम पीपल गेट मोटिवेटेड बाय अप्रिसिएशन, सम पीपल गेट मोटिवेटेड बाय negative motivation. It's very different for different people. Right. So even in our organization, the rules are different for different people. It's not कि एक चीज़ सब के लिए चल जाएगा. For a lot of people it is strict. 10 बजे आना है, 7 बजे से पहले लॉग आउट नहीं करना है. Like you're saying. For a lot of people it's a little bit more relaxed. Because we know कि क्या उनका काम है, वो ट्रैक कर सकते हैं अगर वो रिमोट भी हैं. जो लोग रिमोट काम कर रहे हैं उनके लिए KPIs बहुत डिफरेंट है. So at the end of the day, I think what I'm trying to say is that as long as you can track that person's work, whether it is through a 10 to 7 shift or through a Notion पे mark कर दिया, whatever it is, it's okay. Okay. I feel like it's not like 10 to 7 is toxic. If you come to think of it, 7 बजे के बाद आपको कोई disturb नहीं कर रहा है. You're done, like work is done, go home. And nobody's going to disturb you, which is not the case in a lot of work from home setups. There's no deadline, there's no boundary, right? कि आप पूरे टाइम काम कर रहे हो, किसी भी टाइम पे कॉल आ रहा है, क्योंकि आप पूरे टाइम you also don't know the distinction between what is work time, what is personal time. Correct. So I feel it is more like what works for the person and what works for you as an organization. You create that balance. It's not that simple कि सबके लिए 10 to 7 वर्क करेगा, सबके लिए रिमोट करेगा, सबके लिए. So हमने भी स्टार्टिंग में किया था कि 10 to 7 सबके लिए. Then we started to draw out, different rules for different people, different teams. But जैसे मेरा ये personal belief है that if someone is leaving office at 7, maybe वो 8:30 तक घर पहुँचेगा. Especially let's say अभी तो हम दिल्ली NCR में हैं, गुड़गांव के ट्रैफिक जाम में, बैंगलोर के ट्रैफिक जाम में, पूरी लाइफ का पर्सनल बैलेंस बिगड़ जाता है. मतलब वो ऑलरेडी इतना एग्जॉस्ट हो चुका होगा. But if you are supposed to reach office at 10 a.m. I'm not so tired of standing. If you want to reach office at 10 a.m. then you can go to gym at 7:30, come back, take a shower and come to work. Especially for us because we are still a Delhi-based company, right? There are people who have said कि उनको घर जाके, suppose there are mothers, married women who want to reach home early, so for them we have a 9 to 6 shift. कि ठीक है, आप 6 बजे घर ऑफिस से निकल जाओ, you have the time to do your task in the evening. And
देयर आर पीपल हु सेड कि हमें कम्प्लीटली घर से करना है. Okay. वी हैव यू नो व्हाटएवर, बच्चों का ध्यान रखने के लिए कोई घर पे नहीं है, फॉर एग्जांपल. And for them the shift timings, it's a remote setup, and then we work on KPIs कि दिन में कितनी bookings close करी या whatever. Okay. So your thinking, your perspective right now is for a person like you yourself, right? Come to someone like me. Actually, I don't want to work out. I work out on Sundays. Okay. For example, I am not an early riser, so I want to reach office at 11 and be done by 7:38, and I'm very happy with that. ठीक It's है. not toxic for me at all. मैं literally आज सुबह नहीं, कल रात को एक्चुअली मैंने 4 बार कॉन्टेम्पलेट किया है कि मैं देव को बोलूँ क्या कि हम इसको रीशेड्यूल करते हैं, बिकॉज इट इज़ एक्चुअली टफ टू टेक आउट टाइम, पर आई एम ग्लैड वी आर डूइंग दिस. बट अच्छा, जैसे आपने तो टीम का बताया, सो हाँ. मैं जानना चाहता हूँ कि आपका टीम में मोटा मोटा स्ट्रक्चर कैसा होता है, प्लस आप या पर्सनली ब्रेक कैसे लेते हो एज अ फाउंडर. बिकॉज मैं क्या करता हूँ, देखो मैं महीने में एक बार या 2 महीने में एक बार आई गो ऑन अ ट्रैक, या है ना, फोन स्विच ऑफ करके 2 दिन के लिए. फोन स्विच ऑफ. हाँ बिल्कुल, नेट नहीं आता ऊपर, नेटवर्क ही नहीं आता. True, यू आर true, ऑन true. हाँ. हिल, ठीक है, जहाँ पे आप ट्रैक कर रहे हो, आपको पता Yeah. नहीं जंगली भालू हैं वहाँ पे कुछ नहीं है आपके पास. सही. यू आर 25 किलोमीटर्स अवे बाय वॉकिंग, या ठीक है, फ्रॉम द नियरेस्ट ह्यूमन. तो हाउ कूल. वेयर वाज द लास्ट ट्रैक यू वेंट टू? लास्ट ट्रैक अभी न्यू ईयर पे तुंगनाथ, उससे पहले रुद्रनाथ. ओके. रुद्रनाथ वाले में फकअप हो गया था बिकॉज आई वाज क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ रील्स एंड एंड स्नोस्टॉर्म आ गया था एक, ओह तो शिट. एंड आई वाज बेयरफुट. हाउ यू बेयर फीट? मतलब वो तो बहुत ही रिस्की नहीं है? रिस्की है, पर लाइक आई वाज ट्राइंग टू डू अ चैलेंज कि ओह शिट. इसमें क्या होता है, कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है इफ यू डू समथिंग इम्पॉसिबल, रिस्की. है ना. एंड उसमें मेरे पैर में फ्रॉस्ट बाइट हो गई थी, सो आई वाज ऑन बेड रेस्ट फॉर 15 days. Fuck dude, that's scary. That's very scary. बट दैट वाज द ओनली केस. उसके बाद आई रियलाइज कि कोई भी स्नो ट्रैक होगा, हाँ. आई विल नॉट गो अलोन. You went alone? हाँ. So that is सारे ट्रैक अलोन होते हैं एक्सेप्ट फ्रॉम द केदारकंठा वन, जो मैंने टीम एक लोगों के साथ करा था, ग्रुप के साथ, जो भी स्नो ट्रैक था, इसलिए Guys, क्योंकि what पहले if your founder doesn't come back? Then you know what's happened. But हाँ, so you do alone trek. नहीं, नॉट नेसेसरली कि मैं हर 2 महीने में करता हूँ, बट आई ऑल्सो डू अ लॉट ऑफ स्केचेस, Okay. तो दैट इज माई ब्रेक. Yeah. आपका क्या ब्रेक है? It's a little disappointing as an answer, but I love sleeping. I really feel like I can sleep as much as कोई और इतना नहीं सो सकता जितना मैं सो सकती हूँ. But apart from that, I go for dance classes on Sundays. ओके. That's one. Hmm. We travel often. तो हम I think twice a year we travel. 15 days. So that's 30 days travel. Not 30 days actually, 20 days in total. 21 days in total in a year. So वो एक है. Yeah, it's not like a founder life is not that balanced. So I have 6 days working office. So Saturdays are working. So one day we try to do a work from home. Other days we try to do a work from office. And that's about it. And we go for walks, like evening walks. But that's वो तो very normal है. basic. हाँ मतलब इतना यार, ये तो अभी हुआ है इतना, तो मतलब फर्स्ट Starting 3 में तो नहीं years तो होगा. संडे भी वर्किंग था मेरा. हाँ. और मतलब फाउंडर्स के लिए, नॉट फॉर एवरीवन, वी आर नॉट टॉक्सिक. एंड देयर वर नो ट्रिप्स एट ऑल, नॉट इवन विद फैमिली. आई रिमेंबर माय फैमिली वो ट्रैवल एंड लाइक नहीं, मुझे काम करना है, मैं नहीं जा सकती. सो फर्स्ट 3 साल तो हमने कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है. सो इट्स या, स्टार्टिंग से वर्क लाइफ बैलेंस इज अ मिथ. इट डजंट हैपन. आई डोंट थिंक एनीबडी हु इज बिल्ड गुड बिजनेसेस वुड से कि हाँ हमने बहुत ही वर्क लाइफ बैलेंस अचीव कर लिया था स्टार्टिंग ईयर्स में. इट्स नॉट ईजी. आई ऑल्सो थिंक कि अगर आप एक ब्रेक लेते हो तो मे बी आप कुछ क्रिएटिव सोचते हो, हाँ, आपको ये है. सोचने का टाइम मिलता है एक्चुअली. अगर आप पूरे टाइम ही काम करते हो तो आप सोच ही नहीं पाते हो, आइडियाज ही नहीं आते हैं. That's very true. Very, very true. I agree with that process of thought. बट उतने लंबे ब्रेक्स तो हो नहीं पाते इनिशियल ईयर्स में, बिकॉज आपके पास इतनी बड़ी टीम नहीं होती, डेलीगेट नहीं किया होता. अभी जैसे ये है कि आपने फ़ोन ऑफ कर दिया, अगर आई एम श्योर समवन एल्स इज टेकिंग केयर ऑफ दैट वर्क फॉर यू. हाँ. राइट. अगर वो इनिशियली रिसोर्सेज ही नहीं है वो करने के लिए, सब कुछ आप पे डिपेंडेंट है, तो आप कैसे कर लोगे वो?
स्टार्टिंग में तो बहुत इशू होता था, स्टार्टिंग के 2 साल तो हम भी कहीं नहीं गए थे. Exactly. आफ्टर वी मतलब इन द लास्ट ब्रांड इफ आई से आफ्टर वी रीच्ड एटलीस्ट 1 CR का एरा, और हम स्टूडेंट से तब, Yeah. तो हमारे पास मेजर चीज़ें तो टेकन की थी पीजी में, हॉस्टल में. Yeah. हमें उसी कोई दिक्कत नहीं होती थी, तो उस टाइम पे वी यूज्ड टू वेंट, लाइक वी यूज्ड टू गो टू ट्रिप्स एंड ऑल. Yeah. So यही है, it's not work life आता है balance, but time लगता है. And honestly, people, it's okay if you want that in the initial years of your life as well. But then I feel that don't have extremely crazy expectations from your career. बहुत मुश्किल है. to- अभी तो एक्सपेक्टेशन है कि स्टार्ट करेंगे पहले महीने में, चौथे महीने में यूनिकॉर्न. ये लोग कर पा रहे हैं कुछ लोग. अब एक्सेप्शंस तो ऑलरेडी But exception, हाँ मतलब that's not everyone's story, like I said. हमारा pesto pasta ready है. You want to have a taste bite and tell me how it is? Wait, Sure. I'll give you a fresh spoon. दीदी चम्मच चाहिए. Have a bite. It is actually very good. Does it need anything? Any additions? I don't think so. No? बिल्कुल रेस्टोरेंट लेवल. So let's actually sit down. हाँ है ना? sure. थोड़ा नींबू Really ज़्यादा good. हो गया. हाँ थोड़ा सा. थोड़ा नींबू ज़्यादा हो गया. तो अब हम क्या बात कर रहे हैं? So I wanted to ask you last 2 or 3 questions. है ना, हम सब करेंगे क्योंकि मेरे को पास्ता पे फोकस करना है. The first is कि one advice for early stage entrepreneurs. हमने हालांकि काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करी हैं, but someone who is just getting started, उसको पता नहीं है, and is someone who is trying to go into something like ऐसी फील्ड के अंदर, ऐसी इंडस्ट्री के अंदर जो ऑर्गेनाइज नहीं है, लाइक आपने करा था, उनके लिए. I think today founders are not building for a need in a lot of areas. I feel कि startups बहुत खुल रहे हैं क्योंकि startup trend है. Agreed. Whether it's a real need, whether it would be utilized by someone or not, I don't think everyone's thinking through that. क्योंकि सबको लगता है funding आ जाएगी. I don't think that's how it should be. Like थोड़ा be clear on that you have to build a business regardless whether you are funded or not, and you should be able to survive regardless, and people should want your product. That's I think one fundamental rule. अगर आपको पता है कि ठीक है मार्केट अभी नहीं है, क्रिएट करना है, मार्केट क्रिएशन कैटेगरीज बहुत होती हैं, पर उसके बाद भी वो उसका कुछ फ्यूचर होना चाहिए. जैसे मतलब जोमेटो बहुत टाइम तक लॉस में था. लॉस इज़ ओके, आई एम नॉट सेइंग दैट लॉस नहीं होगा, बट आई एम सेइंग कि जोमेटो अगर आज नहीं होगा आपके फ़ोन में तो यू वुड फील अ गैप, राइट? राइट. You go to Zomato, you use Zomato on your phone at least once in a week, राइट. right? So you go back to the product. राइट, बट आई थिंक वो चीज़ डेवलप करने के लिए जोमेटो की मार्केटिंग टीम ने, एंड प्लस आई थिंक बहुत टाइम लगा है, यू नो, बहुत टाइम तक लॉसेस में रहा है, बिकॉज इट वॉज मैसिवली फंडेड. ही सॉ एन अपॉर्चुनिटी, ही वांट्स टू ऑर्गेनाइज इन एन ऑर्गेनाइज मार्केट, एंड उसमें जोमेटो की तरह बहुत हेवी फंड्स नहीं है कि ही कैन रन इन टू लॉसेस फॉर लाइक 10-15 years. What will you suggest? That's exactly my point. That Zomato could burn that much because they had the capital. So either you have that capital, or if you don't have that capital, then you must know how to run a business sustainably. Okay. And in fact, before Zomato, Food Panda was there, Right. which was into heavy losses, had to wrap up, right? And they were the ones who created that entire segment, not Zomato. Food Panda ने पहले काफ़ी अर्ली स्टेज थीसिस कर लिया था. काफ़ी डिस्काउंट्स दे के लिए. मतलब they kind of created that habit, as of course Zomato worked exceptionally well, but not all businesses would have that much capital, right? So if you don't have that much capital, you must know कि एक ज़ीरोधा कैसे बनाना है without
any funding at all. Got And I feel you should also be some amount of self-awareness also that's required. If you think today कि कुछ पहले बनाया नहीं है, कुछ नहीं करा है और मैं तो 200 करोड़ उठा लूँगा और ये बना लूँगा, don't be in your delulu world, हाँ. right? मतलब बहुत लोग होते हैं कर लेते हैं कि बट प्रोडक्ट नहीं पता है क्या है, क्लैरिटी नहीं है, पर बस ये है कि फंडिंग उठा लेंगे तो हो जाएगा. मेरे पास भी लाइक वी हैव अ गुड इंस्टाग्राम कम्युनिटी, सो आई गेट Yeah. मैसेज लाइक आई जस्ट नीड 15 crores, कैन यू कनेक्ट Exactly, like what? जस्ट नीड 15 crores. मतलब 15 रुपए है, मतलब कोई ऐसे दे देगा. It doesn't, it's not, funding is not easy. It's, yeah, so you must be prepared for the fact that अगर नहीं आ रहा है पैसा तो मैं 1 साल, 2 साल, 3 साल, Broomies was not funded up till 1 year. We were in profit. We knew, and it's a difficult industry. People have come in the space जिन्होंने पहले नहीं काम किया, जिन्होंने directly पैसा उठाया है. That's one approach, but we didn't have that luxury. We didn't have that privilege. In fact, हम लोग तो अभी privileged family से आते हैं. I could be in a setup कि अगर मैं 1 साल कुछ earn नहीं करूँगी तो I'm okay. I earned, but I'm saying that kind of privilege. Not to start a startup it's a privilege if you are able to do it. If you have that kind of background, family resources, you know. It's a luxury. It's a luxury. It's actually a chance luxury. मिल रहा है. चांस मिल रहा है और सबका सपोर्ट चाहिए होता है. और अगर आप अपने आप को सस्टेन कर पा रहे हो और किसी और से पैसे भी मिल रहे हैं, बहुत बड़ी लग्जरी है. डू यू थिंक आपके कोई कनेक्ट्स के अंदर या नेटवर्क के अंदर डू यू थिंक देयर आर 3 startups that you would recommend to the viewers to try it out or to the investors who might see this video? To try them out, like the early stage startups, are you saying? Early stage or any startup that you think they are doing really good but underrated है. Oh, that's One is Anjob. Marketing 101. Of course, but I think Anjob has a lot of potential. It's also something that is very, very relevant for today. So definitely Anjob. Yet I'm actually very biased towards these health startups Health startups. because I have started to look after my health. So, but I feel like Evolve Snacks is superb. Okay. I love their snacks, but I don't know why it's not that famous. Maybe it is, maybe I don't know. But I found them through Cred, Okay. and they have like ragi chips and all of those with beetroot with and all. yeah, with very, very good ingredients. So very, very cool. One is Beko. Beko. Yeah, so they do home essential services. For example, they do napkins, tissue papers, detergents and stuff like that, but very clean ingredients Okay. and very good price point, very sustainably, all of that. So I use their products off Amazon. I didn't see any ad. Found them to be so good that I have replaced pretty much 5-6 different kind of items in my house with Beko items. Okay. And then I searched about them कि भाई क्या है, and then I saw that they've raised funding last year 3 million or something. But doing damn good, man. I mean, वो स्टार्टअप्स जिनके बारे में आपको पता नहीं होता, आप यूज करके उनके यूजर बन के फिर आप सर्च करो उनके बारे में. This is the compliment जो हर एक फाउंडर को सुनना चाहता होगा. Exactly. है ना? And I hope this video reaches Beko organically. Yeah. मजा आ जाएगा. love He will their love this products. compliment. Yeah. अच्छा, last question of this whole conversation. How do you tackle negative reviews from the customers? Yeah, I would say I am still in that journey of figuring it out. It affects me a lot personally because today customers are very, very rude. Like I have had some customers go on my personal pictures and say a lot of stuff, like just because they didn't, for example, like the service. So, but I think keeping your personal self aside, it's important to understand the customer's perspective कि वो क्यों गुस्सा हैं और क्या हम उसके लिए सॉल्व कर सकते हैं. And for in whichever ways you can. For example, हम लोग refund is one thing, but apart from that, before that, a lot of things come like
एक्सटेंशन देना सर्विस का, एक फोकस करके एस्केलेट करके बेटर वर्कर देने की कोशिश करना, सम कैश बैक दे देना, सम काइंड ऑफ अ थिंग ट्रिक टू क्रेडिट नोट टाइप. हाँ क्रेडिट नोट दे देना या समथिंग दैट गिव्स देम. एक्चुअली क्रेडिट नोट एंड रिफंड इज स्टिल आई वुड से द लास्ट रिसॉर्ट. बिफोर दैट you could do 10 things differently so that उनका experience better हो. So essentially what we would do is we would have someone senior call them, understand their issue, try to solve it in whichever way we can, right? Worker अगर ठीक से काम नहीं कर रहा है तो trainer से mediation कराया हो, worker consistent नहीं है replacement फटाफट देने की कोशिश करो. कोई और issue है अगर for example कोई बैकआउट हो गया वर्कर का, टाइम पे नहीं पहुंचा, उससे इशू है तो टू इंश्योर कि वो ना हो फिर से. पर काफ़ी कस्टमर्स को रेजोल्यूशन देने के बाद भी दे आर नॉट सेटिस्फाइड. And it's honestly not, कह भी नहीं सकते कि groomies can take all the blame because the industry ही एग्जैक्टली ऐसी है कि एग्जैक्टली दिस इंडस्ट्री इज़, I can't tell you how tough this industry is to be in. It is a very very tough industry. I think the only way out is to set SOPs as many as you can. Right. कि अगर ये हो जाए तो ये करना है, ये हो जाए तो ये करना है, ये हो जाए तो ये करना है. And in while you're creating those SOPs, to have a lot of empathy towards the customer कि you know they have a certain level of expectation which is fair and that should be delivered upon. But having said that, I think it's very difficult to read negative reviews. What I try to do as much as possible is to speak to customers myself, whether it is coming on LinkedIn or Instagram or wherever. I always reply, always, like, and I've been told by people who come to my team, especially seniors, कि you're not supposed to reply to a LinkedIn comment or whatever yourself. Don't do it. But I feel like I should really do it because you know if someone's reached out to me for something, then they have a certain amount of hope. कि founder तो reply करेगा, Founder- कोई नहीं सुनेगा तो founder हाँ, तो- and as a founder you must know what's happening in your company. So I make it a point to understand कि क्या हुआ है, case क्या है exactly, where did we go wrong, if we did go wrong at all, and to be able to solve it through a strategic decision. So the reason of listening to a customer is not just कि उसकी hope है उसको, it's also to understand where are we consistently going wrong and how to correct it. Correct. So that's important, I feel. I don't know if this is a strategy that will work for anyone else, but I do speak to customers personally. I get calls, I speak to them. And I have had countless cases where customers who were upset have become cheerleaders, who have, you know, अगर किसी और का negative comment आया है तो 10 लोग लिखेंगे उसको कि defend भी करते हो. defend भी हाँ. करेंगे कि no, you know, she's always helped us or whatever. So I feel, yeah, it's a journey. And you have your ups and downs. The downs hurt, but चलते रहो. चलता रहता है. Yeah. ठीक है. So let's end this podcast here.